Now, in the last 2 weeks, we spoke on receiving abundant grace from God and the hindrances that come in the way of grace. पिछले 2 हफ्ते से हम देख रहे थे परमेश्वर की जो अनुग्रह है उसको बहुतायत से हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं और क्या क्या बाधाएं होती हैं उसमें उसको हमने देखा था. And we looked at 4 or 5 points, but I'm going to elaborate on one primary point which is important for all of us to remember throughout our lives. हमने 4-5 बातों को देखा था, पर आज हम एक बात को और विस्तार से देखेंगे क्योंकि वो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है. And it's a continuous process of you and me remembering that any time life can go off in a tangent. क्योंकि हमारे लिए बहुत जरूरी है जानना ये इसलिए क्योंकि कभी भी हमारा जीवन जो है वो एकदम विपरीत दिशा में जाना शुरू हो सकता है. In 1 Timothy 4:16, Paul wrote to Timothy and said, "Watch your life and doctrine closely." तो 1 तिमोथी 4 अध्याय उसकी 16वीं आयत में उसमें लिखा है कि इन बातों पर स्थिर रह क्योंकि तू अपनी ओर से अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण हो. Because abundant blessings of God that we keep on receiving and how He changes us, it's possible that after some time we become proud in our heart. क्योंकि जब हमें परमेश्वर से आशीष मिलती है तो हो सकता है कुछ समय के बाद हम अपने जीवन में अपने हृदय में घमंडी हो जाएं. And pride hinders grace. और जो घमंड है वो अनुग्रह को आने से रोकता है. Whatever gifts God has already given us, He will not take back, because as the nature of God is, Romans 11:29, His gifts and His call are irrevocable. और जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो कभी बदलता नहीं, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है जैसे रोमियो 11:29 में लिखा है वो अपने वरदानों को अपनी बुलाहट को कभी पीछे नहीं हटता. But if we become proud, we will be difficult for us to receive more grace from God. We hinder the grace from God. पर अगर हम घमंडी हो जाते हैं तो हम परमेश्वर के अनुग्रह के आने में बाधा बन जाते हैं. And therefore we have to remember that Lord expects His people to humble themselves. और हमें सीखना है कि परमेश्वर हमसे आशा रखता है कि हम जो उसके लोग हैं वो नम्र बने रहें. It's a New Testament teaching also apart from the Old Testament. और ये नए नियम की शिक्षा भी है और पुराने नियम में भी इस बात का वर्णन है. In the Old Testament, in the book of Proverbs 3:34, it's written, God resists the proud, He gives grace to the humble. और नीतिवचन 3:34 में लिखा है कि परमेश्वर जो है जो घमंड करने वाले से तो घृणा करता है, पर जो निम्र है उसको उठाता है. Is as much relevant today as in the Old Testament. और ये आज भी उतना ही मतलब रखता है जितना कि पुराने नियम में इस बात के बारे में बताया गया. Because both Peter and James quoted this particular Old Testament verse in the New Testament context. और पत्रस ने याकूब ने दोनों इस बात को पुराने नियम की जो बात है इसको नए नियम के संदर्भ में इसके बारे में बताया. In 1 Peter 5:5, Peter says, God opposes the proud, gives grace to the humble. And next verse says, humble yourself, therefore under God's mighty hand He'll lift you up. और पत्रस कहता है कि परमेश्वर जो है जो घमंडी है अभिमानियों का सामना करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है. And after quoting that particular verse in 1 Peter 5:5, in 1 Peter 5:6 he says, humble yourself before God and He will lift you up. और उसी से अगली आयत में 6ठी आयत में कहता है इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो कि वो उचित समय पे तुम्हें बढ़ाए. Because God opposes the proud and gives grace to the humble, therefore humble yourself. क्योंकि परमेश्वर जो नम्र होते हैं उसको अपना अनुग्रह देता है और जो घमंड करते हैं उनका विरोध करता है, इसलिए हमें नम्र बने रहना है. Same way in James 4:10, James writes, humble yourself under God's mighty hand, He will lift you up in due course. और उसी तरह से याकूब 4:10 में भी लिखा है प्रभु के सामने दीन बने रहो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा. Every one of us must learn to humble ourselves because we are receiving so much of grace that grace can make us proud. और हम सबको इस बड़ा नम्र बने रहना है क्योंकि हम इतना अनुग्रह पा रहे हैं और जब अनुग्रह पाते हैं तो हो सकता है उसके कारण से हम घमंडी बन जाएं. And please remember, the Lord wants us to humble us. He doesn't say He's going to humble us. और परमेश्वर चाहता है कि हम नम्र बने. वो हमें खुद वो नम्र नहीं बनाएगा, वो चाहता है हमसे आशा रखता है कि हम नम्र हों. No, we must learn how to humble ourselves before God. और इसलिए हमारे को सीखना है कि हम परमेश्वर के सामने कैसे नम्र हो सकते हैं. I want to share with you what I have learned all these years on learning how to consciously, actively humble ourselves before God. और भाई अपने अनुभव से जो इतने सालों में उन्होंने सीखा उससे हम आज बताएंगे कि कैसे हम परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र बनाए रख सकते हैं. The word humbling in Greek is a word called tapernomai, which means to make self low. और ये यूनानी शब्द में अगर नम्रता को देखें तो टेपोलोमाई शब्द है. इसका मतलब है कि अपने आप को नम्र बनाएं. And Jesus humbled Himself in the sense that He left the glory in heaven, became low, became man,
became lower than the angels. That is the humbling of Jesus. और प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को नम्र किया कि स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी पे आए और अपने आप को स्वर्गदूतों से भी नीचा किया। इस तरह से उन्होंने अपने आप को नम्र बनाया। He chose to come down and do the will of the Father. It's his own choice, and therefore he did the will of the Father joyfully. और वो परमेश्वर की इच्छा, अपने पिता की इच्छा में स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी पे आए और इस इच्छा को पूरा करने में उन्होंने बड़े आनंद के साथ उसको पूरा किया। Normally, when we say so and so humbled himself, we normally mean that earlier he was proud, now he is humble. और हम कहते हैं कि भाई फलाना बड़ा नम्र हो गया, इसका मतलब पहले वो बड़ा घमंडी था, अब वो नम्र हो गया। And the Bible says in Philippians chapter 2, verse 5 and 6 that Jesus humbled himself. It doesn't mean earlier he was proud. और फिलिपियों दूसरा अध्याय 5 और 6 में जैसे लिखा है यीशु मसीह ने अपने आप को नम्र किया, उसका मतलब ये नहीं कि वो पहले घमंडी थे। Just that he left the glory in heaven, the universe he created, from there he entered the earth and became man, became lower than the angels, became a human being. That is humbling. और प्रभु यीशु मसीह जो सारी सृष्टिकर्ता को बनाने वाले थे, अपनी सृष्टि में पृथ्वी पे आए और पृथ्वी पे भी मनुष्य स्वर्गदूतों से भी नीचे बन गए, मनुष्य बन गए। ये उसकी नम्रता को दिखाता है। And then the same way our humbling should be that we should not think us more highly than ought to, consider others better than ourselves. और हमें भी अपने आप को नम्र करना है इस तरह से कि हम दूसरों को अपने से बेहतर समझें। These are expressions of humility. ये नम्रता के चिन्ह हैं। But what are the resources God has given us for us to humble ourselves? पर परमेश्वर ने हमें कौन से साधन दिए हैं जिससे हम अपने आप को नम्र बनाए रख सकते हैं? And we look at the life of the Apostle Paul, we realize that in his case he humbled himself. He was a humble man. और पौलुस के जीवन से हम देखते हैं कि उसने अपने आप को नम्र किया था। After becoming an apostle, in Philippians chapter 3 verse 8 he says, although I am less than the least of all God's people, this grace was given to me to preach to Gentiles the unsearchable riches of Christ. और वो कहता है फिलिपियों 3 अध्याय उसकी 8वीं आयत में, मैं यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, इस कारण सब वस्तुओं की हानि उठाई और उसे कूड़ा समझता हूँ। And also, as we heard in the prayer in 1 Corinthians 15:9, he says, I'm the least of the apostles and don't even deserve to be called an apostle. और पहला कुरिन्थियों 15:9 में भी हमने जैसे प्रार्थना के समय सुना कि वो कहता है मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं हूँ। Mind you, he says all these things after becoming an apostle. और ये सारी बातें वो तब कह रहा है जब वो प्रेरित बन चुका है। I'm less than the least of all God's people. वो कहता है कि परमेश्वर के सब लोगों से मैं सबसे छोटा हूँ। And when I talk about the various resources God has given us for us to humble ourselves, we'll realize that these are found in the life of the Apostle Paul. और जब हम उन साधनों को देखते हैं कि हम कैसे अपने आप को नम्र बना सकते हैं, तो हम सारी बातें जो हैं कि पौलुस के जीवन में हम देखते हैं। Now, first of all, the primary ways by which we humble ourselves is to remember the cross of the Lord Jesus Christ. और सबसे पहला कारण जिस कारण से हम अपने आप को नम्र बनाए रख सकते हैं, इस बात को स्मरण रखना है कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस के बारे में। Let's understand we are Gentiles. हम इस बात को समझ लें कि हम तो अन्य जाति हैं, We are not Jews. हम यहूदी नहीं हैं। And the gospel came to Gentiles, the blessings of God came to Gentiles only after the cross. और जो अन्य जातियों के पास जो प्रभु यीशु की आशीषें आई, वो सिर्फ क्रूस के बाद आई। When the Lord Jesus Christ walked this earth in flesh and blood, he ministered primarily to the Jews. He was called for the Jews. That is the calling of Father for Jesus when he walked this earth. जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पे थे, इस पृथ्वी पे चल फिर रहे थे, तो उनकी पहली बुलाहट जिस कारण से उन्हें भेजा गया था, वो यहूदी लोगों के लिए था। Very rarely ministered to the Gentiles. बहुत कम देखते हैं हम उदाहरण जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने अन्य जातियों की सेवा करी। When the Syrophoenician woman brought her daughter to be healed of demon possession, she came to disciples first. And disciples, she's special disciples. And the Lord tells and the disciples tell Jesus, this lady is pestering us for the healing of her daughter. और वो जो फिनोसिया की जो औरत स्त्री थी, वो जब प्रभु यीशु मसीह के पास आने से पहले चेलों के पास आई अपनी बेटी को दुष्ट आत्मा से छुड़ाने के लिए, तो उसके चेले जो है उसको प्रभु यीशु मसीह को बोलते हैं, ये स्त्री हमें बहुत परेशान कर रही है अपनी लड़की को चंगा करने के लिए। And the Lord says, I have come only for the lost sheep of Israel. Matthew 15:26. और मत्ती 15:26 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं सिर्फ इजराइल की जो भटकी हुई खोई हुई भेड़ है उनके लिए आया हूँ। I've come only for them. His physical life on this earth was for the Jews. और उनका जो शारीरिक जीवन इस पृथ्वी में था, वो मुख्यतः यहूदी लोगों के लिए था। Then the lady goes before Jesus. और वो स्त्री फिर प्रभु यीशु मसीह के पास जाती है। And to her he says, I can't give the children's bread to the dogs.
और फिर प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं कि मैं जो बच्चों लड़कों की रोटी कुत्तों को आगे के नहीं डाल सकता। And it must have been a very insulting thing for anybody to hear that. But Jesus testing her faith and she passed the test. और किसी के लिए अगर ऐसा बोला जाए तो उसको बड़ी बेइज्जती की बात है, पर प्रभु यीशु मसीह उसको बोलते हैं उसके विश्वास को उसको जांचने के लिए। The fact is he came only for the Jews, but he told in a way that would have hurt anybody else. और वो वास्तव में प्रभु यीशु मसीह यहूदियों के लिए आए थे, पर जो बात बोली वो किसी और को अगर बोलते तो उसको बड़ा दुख लग जाता, बुरा लगता। But then she says, even the dogs eat the crumbs that fall from the table. पर वो कहती है कि पर कुत्ते भी वह चूर-चूर खाते हैं जो अपने स्वामी की मेज से गिरता है। The Lord commends her for her faith. You have got great faith, he says. और प्रभु यीशु मसीह उसके विश्वास की तारीफ करते हैं, उसके बोलते हैं तेरा विश्वास बड़ा है। Mind you, he told that in front of the disciples. और ये बातें जो है प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के सामने कही। He commended her before his own disciples. अपने चेलों के सामने उसकी ये बड़ाई करी। Disciples were earlier rebuked by Jesus for having little faith. और उससे थोड़े समय पहले ही प्रभु यीशु मसीह ने उन चेलों को डांटा था कि तुम्हारा विश्वास बड़ा छोटा है। When they were in the boat and the boat there was a storm, they woke up, Master, Master, we're going to drown. The Lord rebukes them. You have little faith. और जब उससे पहले नाव में थे और वो कहे प्रभु स्वामी स्वामी हम डूबे जाते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह उनको डांटा, बोला तुम्हारा विश्वास बहुत छोटा है। Here this lady has great faith. और यहाँ वो सुन रहे हैं कि स्त्री का बड़ा विश्वास है। But then it is a lesson for the disciples also. और यहाँ पर ये चेलों के लिए भी एक सबक है। That's what Lord did in front of the disciples for them to understand. और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने ये जो चिन्ह था वो चेलों के सामने किया ताकि वो समझ सके। Normally he would not minister to the Gentiles. आमतौर पे प्रभु यीशु मसीह अन्य जातियों के बीच में सेवा नहीं करते थे। That's why when a few days before he was arrested and crucified, some Greeks came to see him. और इससे पहले जब प्रभु यीशु मसीह जब पकड़वाए जाते उससे कुछ दिन पहले कुछ यहूदी लोग यूनानी लोग जो थे वो प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए आए। And they came to Philip actually. वो वास्तव में फिलिप के पास आए थे। And they told Philip, we want to see Jesus. और उन्होंने फिलिप को आगे बोला कि हम प्रभु यीशु मसीह से मिलना चाहते हैं। And Philip knew that the disciples know that normally he won't minister to Gentiles. और चेले थे वो जानते थे कि आमतौर पे प्रभु यीशु मसीह चेलों की सेवकाई नहीं करते, ये अन्य जातियों की सेवा नहीं करते। And Philip did not have the guts to tell the Greeks that no, he won't see you. और फिलिप में इतना हिम्मत नहीं थी वो इन यूनानी लोगों को कह दे कि वो तुम्हारे से नहीं मिलेगा। And to the Greeks, he couldn't tell the Greeks that Jesus won't meet you. और यूनानी लोगों के अंदर को कहने के लिए उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो तुमसे नहीं मिलेगा। And then he goes to Andrew. और फिर वो जाके वो अंद्रियास के पास जाता है। Andrew has a reputation of bringing people to Jesus. He brought his own brother Peter to Jesus. और अंद्रियास के अंदर ये खूबी थी कि दूसरे लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास लाने की, वो पतरस था उसको लेके आया था। Philip and Andrew together go to the Lord Jesus Christ. और फिलिप और अंद्रियास दोनों प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं। And then they tell him, some Greeks have come to see you. और आके बताते हैं कि कुछ यूनानी लोग हैं जो आपसे मिलने के लिए आए हैं। This is found in John chapter 12 verse 20 to 23. और यूहन्ना उसके 12वां अध्याय उसके 20 से 23वें आयत में हम इसको हम पढ़ते हैं। Look at this response. और प्रभु यीशु मसीह का जो उत्तर है उसको हम देखते हैं। The hour has come for the Son of Man to be glorified. वो कहता है कि वो सब घड़ी आ गई है कि जब परमेश्वर के पुत्र की अब महिमा में आ जाए। As if to say, now the time has come for me to be crucified, buried, resurrected, and then when I shed blood on the cross, all people can benefit from my work on the cross. और उनका कहना मतलब ये था कि जब मैं अब क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा, मारा जाऊंगा, सब अपना लहू बहाऊंगा, तो उससे सारी जाति के लोग उससे आशीष पाएंगे। As he was crucified, when the blood was shed on the cross, the curtain tore into from top to bottom. और जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए गए, उनका लहू बहाया गया, जो मंदिर का पर्दा था वो ऊपर से नीचे तक पूरा फट गया। 27th chapter of Matthew was 51. It tore into, meaning anybody can enter the most holy place by faith in the work of Christ on the cross. और मत्ती 27वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि इस बात को पढ़ते हैं, इसका मतलब यह है कि अब प्रभु के उस अनुग्रह के पास कोई भी आ सकता है। So only because of that you and me are actually God's children today. और ये उसी के कारण से है आप और मैं जो आज परमेश्वर की संतान बने हैं। And therefore the cross is the means by which we are even children of God, and therefore you should boast of the cross. और इसी क्रूस के कारण से हम परमेश्वर की संतान बने हैं, और इसी क्रूस के कारण से हमें गर्व भी घमंड भी करना चाहिए। We shouldn't boast in anything else except the Lord Jesus Christ. हमें किसी और बात पे प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के घमंड नहीं करना चाहिए।
Realizing this because of the cross only we are actually children of God, that will keep us humble. और इस बात को अगर हम स्मरण रखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस के बलिदान के कारण से हम उसकी संतान है, इस बात से हम नम्र बने रहेंगे। In Galatians 6:14, Paul writes, "May I never boast except in the cross of my Lord Jesus Christ, through which the world is crucified to me, I've been crucified to the world." गलतियों 6:14 में पढ़ते हैं, पर ऐसा ना हो कि मैं किसी और बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। So every time you go to God in prayer, be thankful to God for the cross and meditate upon the work of Christ on the cross. और हर समय हमें जो है प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे ध्यान लगाना है और उसी को अपने जीवन में स्मरण करना है। The second method by which we can humble ourselves is to remember our beginnings. और दूसरा कारण कि हम नम्र बने रहें, उसके लिए हमें ये है कि हम अपनी शुरुआत को हरदम स्मरण रखें। Sometimes when we are blessed by God abundantly, we forget where we started. Today we are in so many ways we are blessed, and it's easy to forget how we started and then and become proud because as we achieved something. और हम जब बहुत आशीष परमेश्वर हमें दे देता है, तो हम भूल जाते हैं कि हमने कहाँ से शुरुआत की थी, और उन आशीषों के लिए हम परमेश्वर को स्मरण करके परमेश्वर को भूल ही जाते हैं। The Apostle Paul didn't forget his beginnings. और पौलुस जो है अपनी शुरुआत को नहीं भूलता। He realized he was a violent man, a persecutor, a blasphemer. First Timothy chapter 1 verse 30 wrote to Timothy about it. और तिमोथियुस को लिखते हुए पहला तिमोथियुस पहला अध्याय में उसमें लिखता है कि मैं पहले कैसे ठट्टा करने वाला, सताने वाला और एक बुरा व्यक्ति था। He's not remembering his past in a guilty way, but in a thankful way. और वो इस बात को स्मरण कर रहा है, ये नहीं कि वो बड़े धन्यवाद हृदय से, पर वो इसको बड़ी अपनी गिलानी के तौर से अपने जीवन में याद कर रहा है। We should never have guilt about our past. In fact, we should forget our past in the context of guilt. But if at all remember the past and the sins of the past, is to thank God how He cleansed us from that sin. अच्छा, पौलुस जो है इस बात को धन्यवादी तौर से याद कर रहा है, वो अपने जीवन में गिलानी के तौर से नहीं कर रहा, क्योंकि हमें अपने जीवन में जो भी हमारा पुराना था उसको हमें परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए स्मरण करना है, गिलानी के तौर से नहीं करना। That's why he wrote it to Titus also. और इसीलिए वो तीतुस को भी लिखता है। Titus chapter 3 from verse 3. तीतुस 3:3 में, At one time we too were foolish, disobedient, deceived, enslaved by all kinds of passions and desires, living in malice and envy. क्योंकि हम भी पहले निर्बोध, आज्ञा न मानने वाले, भ्रम में पड़े हुए और रंग रंग के अभिलाषाओं में और सुख विलास के दासव थे और वैर भाव और ढाक करके जीवन निर्वाह करते थे। But when the kindness and love of God our Savior appeared, He saved us not because righteous things were done, but because of His mercy. और जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्य पर उसकी प्रति प्रकट हुई, तो उससे हमारा उद्धार किया। He saved us the washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit, to be poured upon us generously. और वो कहता है कि हमारा उद्धार वह धर्म के कर्मों के कारण से नहीं कि जो हमने किए थे, पर उसकी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। Having justified by His grace, we may become heirs of hope of eternal, with the hope of eternal life. और हम जब उसके इस विश्वास के कारण से, उसके अनुग्रह के कारण से हम उसके अनंत काल की मिरास के वारिस बन जाते हैं। The focus here is on mercy and grace, not His past life. और यहाँ पे उसका पूरा ध्यान जो है प्रभु की दया और अनुग्रह पे है, और उसके पुराने जीवन जो है उस पे नहीं है। We remember our past life in that sense of thankfulness, not with guilt. There's no guilt. We should forget the former things in the context of guilt. और जो पुरानी बातें हैं उसको वो धन्यवाद के तौर पे तो बोल रहा है, पर उसको गिलानी के तौर पे नहीं कर रहा, क्योंकि हमें पुरानी बातों को भूल जाना है। And the same thing he also exhorted the church in Corinth to remember the beginnings. और इसी बात के लिए कुरिन्थ की कलीसिया के लोगों को भी प्रोत्साहन देता है वो कि वो अपनी शुरुआत को याद रखें। In 1 Corinthians in chapter 1, पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय verse 26 he writes, 26वीं आयत से आगे वो लिखते हैं, think of what you are when you are called. हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। Not many were wise by human standards. और ना शरीर के अनुसार की बहुत ज्ञानवान, Not many were influential. ना बहुत सामर्थी, Not many were of noble birth. और ना बहुत कुलीन बुलाए गए। But God chose the foolish in the world to shame the wise. पर परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। He chose the weak things to shame the strong. परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे। He chose the lowly things, the despised things, the things that are not, to nullify the things that are. परमेश्वर ने जगत के नीचों तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, That no one can boast before Him. ताकि कोई प्राणी अपने ऊपर घमंड ना करे।
Christ has become for us wisdom from God. परंतु उसी के क्यों परमेश्वर की ओर से प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए ज्ञान ठहरा, That is our righteousness, holiness, and redemption. अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। Therefore, let him who boast in the Lord. ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो कि जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। Just like the apostle Paul remembered his past in a healthy way, in a thankful way, he's telling these people, remember what you have when you're called. और जिस तरह से पौलुस जो है अपने पुरानी बातों को धन्यवादी तौर पर स्मरण कर रहा है, इसी तरह से इनको भी बता रहा है कि तुम याद करो तुम जहां कैसे थे जब तुम बुलाए गए। From where you were to what you are now, he has brought us, all the glory should go to God. जो तुम थे और जो अब तुम बन गए हो, तुम्हें जहां तक लेके आया है, ये सारी महिमा प्रभु की है। Giving glory to God means giving all the credit. परमेश्वर को महिमा देना मतलब सारा उसका जो इनाम है, उसका श्रेय जो है परमेश्वर को दे देना। Certain terms you must understand. I don't know in Hindi how you translate, interpret. Praising, exalting, and glorifying. और धन्यवाद देना, प्रेजिंग, एक्सॉल्टिंग एंड ग्लोरीफाइंग। Glorifying, yeah. हाँ, मतलब स्तुति बढ़ाई करना, उसकी महिमा करना और उसकी स्तुति बढ़ाई करना। Okay, I'll tell you. I'll explain in English. To praise God is speak well of Him. और परमेश्वर की बढ़ाई करना मतलब उसके बारे में अच्छा बोलना। Talking good about God to people. Praising, that's how you pray. When you praise someone, you speak good of that person, somebody else, isn't it? हम जब किसी की बढ़ाई करने की बात करते हैं तो हम इसका मतलब ये होता है कि हम उसके बारे में अच्छा बोले कि कैसा अच्छा व्यक्ति है। So when we praise God, say good things about God to people. Never complain about God. Say good things about God to people around us. That is praising God. जब परमेश्वर की स्तुति करने की बात होती है तो उसका मतलब हम अपने आसपास जो भी लोग हैं उनके सामने परमेश्वर के बारे में अच्छी बातें बोलते हैं। Now the word hallelujah in Hebrew actually means praise the Lord. और हालेलुया जो शब्द है यूनानी, वो वास्तव में उसका मतलब है कि परमेश्वर की स्तुति हो। Hallelujah. Yah is actually Yahweh, short form for Yahweh. Hallelujah is praise. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया मतलब या तो है परमेश्वर का नाम और हाले मतलब उसकी स्तुति हो। Yah is the short form for Yahweh. और या जो है वो यावे का एक संक्षिप्त रूप है। When you say hallelujah, you're saying, you're telling each other, praise the Lord, praise the Lord. Speak well of God. और जब हालेलुया हालेलुया वो एक दूसरे को बोल रहे हैं, उसका मतलब ये है कि वो परमेश्वर के बारे में अच्छा बोल रहे हैं, उसकी स्तुति कर रहे हैं। And to exalt the Lord is to lift him up. और उसकी महिमा करना मतलब उसको ऊंचा उठाना। And not only just speaking well of him, lifting up the Lord. Always lifting up the name of Jesus. और उसके नाम को, उसके लिए अच्छा बोलना ही नहीं, और उसके नाम को ऊंचा उठाना भी है। Putting his name above everything else in the world. उसके नाम को संसार में सब बातों से ऊपर उठाना। Glorifying God is giving him all the credit for what we are today. और उसकी महिमा करना मतलब कि जो कुछ आज हम हैं उसके लिए परमेश्वर को श्रेय देना। Any good thing in us, any good thing happens to us, we give him all the credit. That is glorifying. हमारे जीवन में कुछ भी भला होता है, उसकी सारा श्रेय हम परमेश्वर को दे दें, यही उसकी महिमा है। It requires humility to attribute credit to God for everything that happens. और हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है उसके लिए सारी बातों का श्रेय हम परमेश्वर को दे दें, यही उसका महिमा करना है। I'm talking about good things. अब हम भली बातों की बात कर रहे हैं। And therefore, when we remember our beginnings and what we are today, we'll glorify the Lord by saying, even though I was like that, He brought me out of that. It's all glory to Him, all credit goes to Him. और जब महिमा करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसका मतलब ये है कि जो कुछ भी मैं आज हूं परमेश्वर की वजह से ही है, उसी की करुणा के कारण से है, और सारी महिमा उसी की हो। Remembering the past will give us the humility to thank Him for today. जब हम पुरानी चीजों को जब हम स्मरण करेंगे तो हमारे अंदर नम्रता आएगी, ताकि जो आज हम हैं उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें। And I remember when before I became believer, when people sometimes tend to acknowledge what God done in my life and talk about wisdom and knowledge which I have, which God has given me, all glory goes to Him. They think of me as being something very special. और जो भाई को परमेश्वर ने जो बुद्धि दी है, परमेश्वर की ओर से जो दान मिला हुआ है, उसके लिए जब लोग भाई को बोलते हैं कि भाई आप वो भाई को ऐसे बर्ताव करते हैं कि भाई कुछ खास हैं। All of us are very special to God. और हम सब परमेश्वर की दृष्टि में बहुत खास हैं। And sometimes people tell me, "Oh, God is very partial to you." और कई बार तो लोग बोलते हैं, भाई परमेश्वर ने आपके साथ बड़ा पक्षपात किया है। He is not a partial God at all. He blesses everybody, gives grace to everybody.
परमेश्वर बिल्कुल पक्षपात नहीं करता, वो सबको अनुग्रह बराबर से देते हैं। He shows no favoritism. Ephesians 6 chapter verse 9. इफिसियन 6:9 के अनुसार वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। People say, oh, God is very partial to you and you are pampered so much. All of us can be pampered by the Lord. और वो कुछ लोग बोलते हैं, भाई परमेश्वर ने आपके साथ बहुत पक्षपात किया है, आपको इतना प्यार से और लाड से आपको रखते हैं। In those moments, I'm reminded about my beginnings. और उस क्षणों में परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और अपनी पुरानी बातों को जहां से उठे थे उसको स्मरण करते हैं। There was a time I used to worship snakes. I used to go to temple and wait for the snake to come, and mother told me, give the milk to snake, you'll be blessed. और उस दिन वो याद करते हैं जब मंदिरों में जाके सांप को दूध पिलाते थे, माँ के साथ जाते थे, माँ बोलती थी सांप आएगा, इंतजार कर, उसको दूध पिलाना। And now I realize how stupid it was, how I was blinded by the devil. और आज उसको स्मरण करते हैं कि कितनी मूर्खता की बात है कि ऐसे शैतान ने मुझे अंधा बना रखा था। And therefore, it's nothing to do with my intelligence or my capacity. It's all God's grace, and all credit goes to the Lord Jesus. और ये कोई मेरी बुद्धि नहीं, भाई कह रहे अपनी समझ की बुद्धि नहीं है, ये सारी परमेश्वर का अनुग्रह है, ये सारी महिमा उसी को जाती है। The same way Paul said, I was a violent man, a persecutor, blasphemer. Even though I was like that, he gave me grace. और इसलिए पौलुस भी स्मरण करता है कि मैं कैसा एक बड़ा क्रूर व्यक्ति था और दुष्ट था और नुकसान करने वाला था, पर सारे अब जो मैं उसके लिए सब परमेश्वर की महिमा हूँ। In 1 Timothy chapter 1 verse 13, he speaks about being a violent man, a persecutor, blasphemer. In 14th verse, he writes, और 13वीं आयत में पहले तिमोथी पहले अध्याय की 13वीं आयत में कहता है निंदा करने वाला, सताने वाला, अंधेर करने वाला था, पर 14वीं आयत में वो कहता है the grace of our Lord Jesus is poured out upon me abundantly along with the faith and love in Christ. अब हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ। He's giving credit to Jesus वो सारा श्रेय जो है प्रभु यीशु मसीह को दे रहा है that the grace is poured upon him. ये सारा अनुग्रह उसके ऊपर बहुतायत से हुआ है। The only recipient of the grace. वो तो सिर्फ उस अनुग्रह को स्वीकार करने वाला था। Grace can never be earned. Grace is only received. इस अनुग्रह को हम कमा नहीं सकते, इसको सिर्फ हम स्वीकार कर सकते हैं। And that was very important to remember when we began as Christians, how we were and how today is blessed us so much. तो इसलिए हमें स्मरण रखना है कि जब हम मसीह बने थे उससे पहले हम कैसे थे और आज परमेश्वर ने हमें कैसे आशीष दी है। And remember that, that'll keep us humble. तो जब इन बातों को स्मरण रखेंगे तो हम नम्र बने रहेंगे। And third is to look at our present. और तीसरा है कि हम अपने अब वर्तमान को स्मरण करें, देखें and thank him that we are his workmanship. और उस परमेश्वर को धन्यवाद दें कि प्रभु हम तेरे हाथ की कारीगरी हैं। In 1 Corinthians 15:10, Paul writes, पहला कुरिन्थियों 15:10 में वो लिखता है पौलुस, by the grace of God I am what I am. परंतु जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। And the grace was not without effect. No, I worked harder than all of them. और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया। Very interesting. The previous verse he says, I am least of all the apostles. Don't be called an apostle. और नौवीं आयत में उससे पहले कहता है प्रेरित में सबसे छोटा हूं, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं बोलता है। But what I am today is the grace of God, he says. और अब वो कह रहा है कि मैं जो कुछ भी हूं ये उसका अनुग्रह से ही। So today we have not achieved anything, only received. तो हमने आज जो है हमने कुछ पा नहीं लिया है, हमने सिर्फ स्वीकार किया, परमेश्वर ने ही दिया हमें। When people look at our lives today and they look at us and realize we are godly people and we are have peace and joy, they seem to think of us as having achieved something. तो लोग जब हमारे जीवन को आज देखते हैं कि इनके जीवन में कैसे शांति है, कैसे आराम से जीवन अपने बड़े प्रेम के साथ जीवन बिता रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि इन्होंने कुछ कमा लिया है। Especially people of other faiths, they think of even salvation as something achieved, and even the things that blessings of God are something to be achieved by our lives. और दूसरे धर्म के लोग तो ये भी सोचते हैं कि ये जो उद्धार जो है ये भी कमाया जाना, और अपने जीवन में जो कुछ भी है उसको हम कमा सकते हैं, अपने परिश्रम से कमा सकते हैं। We don't achieve anything, we only receive from God. और वास्तविकता ये है कि हम कुछ कमा नहीं सकते, हम सिर्फ परमेश्वर से पाते हैं। And therefore you should acknowledge that to people, that order. Yes, at the same time when something good they talk about it, don't deny it. और हमें इस बात को स्वीकार करना है, पर जब वो हमारे लिए ऐसा बोलते हैं उसको हमें मना भी नहीं करना कि ऐसा नहीं है। When something genuine good about you that someone points out and you try to underplay that and try to deny it, then you are actually saying God is doing a bad job. तो क्योंकि अगर आपकी कोई बड़ाई करता है और आप कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो आप एक तरह से परमेश्वर ने जो आपको आशीष दी है उसको आप मना कर रहे हैं। Accept the fact you have changed, you become a better person, but give him all the credit and say, I am today because of his grace.
आप सारा उस बात को जरूर स्वीकार करें, पर सारा श्रेय जो परमेश्वर को दें कि प्रभु जो कुछ भी मैं आज जैसा भी हूँ, ये सब परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। And we should believe that in our heart and speak out from our hearts. और हमें अपने हृदय में विश्वास करना है और अपने हृदय से ही बोलना है। Denying the work of God in our lives is false humility, it is not humility. परमेश्वर का काम जो उसने हमारे जीवन में किया उसको हम अगर स्वीकार नहीं करते हैं तो हम झूठे नम्रता दिखा रहे हैं, वास्तविक नम्रता नहीं है वो। Humility is in acknowledging that what the good in us today is by the grace of God. और नम्रता यह है कि जो कुछ भी भला हमारे जीवन में आज है ये परमेश्वर के अनुग्रह से है। Let's not forget we are the workmanship of God, Ephesians 2:10. इफिसियों 2:10 के अनुसार हम इस बात को ना भूलें कि हम परमेश्वर के हाथ की कारीगरी हैं। And there are two other verses in the Old Testament we talk about the God's splendor displayed through God's people. और पुराने नियम में एक आयत है कि परमेश्वर की महिमा उसके लोगों से प्रकट होती है। In Isaiah 49:3, the Lord told his people, "You are my servant Israel, in whom I will display my splendor." और यशायाह 49 उसकी तीसरी आयत में कहता है कि तू मेरा दास इज़राइल है, मैं तुझ में अपनी महिमा प्रकट करूंगा। And when they failed God, the Lord spoke about New Testament believers as a prophecy in Isaiah 61:3. और यशायाह 61:3 में नए नियम के विश्वासियों के लिए एक भविष्यवाणी के तौर पे परमेश्वर बोलते हैं, They'll be called oaks of righteousness, a planting of the Lord for the display of his splendor. वो कहता है कि जिससे वे धर्म के 5 वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं, जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। God is working in and through us. परमेश्वर हमारे द्वारा से और हमारे में काम करता है। He is making his splendor be seen through us. और वो चाहता है कि उसकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो। It's his doing. ये उसका काम है। When people see that, they won't know God is working in us. They'll think that we are something great and they'll come and tell us. और जब लोग हमें देखेंगे तो वो सोचेंगे हम कुछ बड़े हैं और हमें आके बोलने लगेंगे। And therefore, don't deny what God is doing. Accept it and say, it's not, I'm only a recipient of this grace, and he's the one who pours out the grace and the gifts to me is given. तो उसको आप नकारे नहीं और उसके लिए सारी महिमा परमेश्वर को दें कि परमेश्वर ही है जिसने सारे दान, ये सारी चीजें जो है उसने ही मुझे दी हैं। Look at the way the Apostle Paul responded to people in the Corinthian church, comparing him and Apollos. और पौलुस किस तरह से उत्तर देता है जब वो कुरिन्थ की कलीसिया के लोग उसको प्रेरित करके बोलते हैं। People being people, they started comparing Paul and Apollos. और लोग तो लोग ही हैं, वो पौलुस को और अपोलोस की दोनों की तुलना करने लगते हैं। Both have different gifts. दोनों के अलग-अलग दान थे। Apollos was a very gifted, eloquent speaker, very articulate. अपोलोस जो था वो बड़ा अच्छा प्रवक्ता था और बहुत Apollos was an eloquent speaker. यस अपोलोस ओनली। अपोलोस जो था वो बहुत अच्छा वक्ता था और बहुत अच्छे से वो अपनी बात को प्रकट करता था। He taught accurately about Jesus. तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत एकदम सटीक तरीके से बताता था। He knew only the baptism of John, it says. और वो कहता है कि उसको सिर्फ यूहन्ना के बपतिस्मे का ही पता था। Which means he did not know the baptism of Jesus, how Jesus baptized the Holy Spirit. That he did not know. और उसको ये नहीं पता था कि कैसे प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा जो पवित्र आत्मा के द्वारा होता है उसके बारे में उसको ज्ञान नहीं था। Whereas the Apostle Paul's ministry was entirely by the Holy Spirit anointing. और पौलुस की जो सेवकाई थी वो पूरी पवित्र आत्मा की अभिषेक के कारण से थी। Paul was not a trained speaker. पौलुस जो था वो कोई प्रशिक्षित वक्ता नहीं था। In 2 Corinthians 11:6 he says, I'm not a trained speaker. और दूसरा कोरिन्थियों 11:6 में कहता है कि मैं कोई प्रशिक्षित या सिखाया हुआ बड़ा ज्ञानी वक्ता नहीं हूँ। And the Corinthian thought of Paul as a man in writing is very, very powerful, in person is unimpressive, and his speaking amounted to nothing. और उसके बारे में लिखा है कि वो बोलने में तो बिल्कुल अनाड़िया पर लिखने में बहुत अच्छा है और उसकी शिक्षा जो है उसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। 2 Corinthians 10 chapter verse 10 talks about that. तो दूसरा कोरिन्थियों 10:10 में इस बात को लिखा है। So being two different personalities, the people began to compare. Some said I follow Paul, some said I follow Apollos, and there were divisions based on allegiance to the different speakers. और वो इस कारण से लोग तो लोग जैसे होते हैं वो इन दोनों के बीच में तुलना कर ले। वो कुछ कहता है मैं पौलुस का हूँ, कोई कहता है मैं अपोलोस का हूँ और वो अलग-अलग दोनों के साथ अलग-अलग अपनी जोड़ाव दिखाते हैं। Paul did not get caught up in these comparisons. और पौलुस जो है इस तुलना में वो नहीं फंसता। He's refuting that actually. बल्कि वो उनको डांटता है। In 1 Corinthians chapter 3 verse 6 and 7 it says, who is Paul, who is Apollos? They are only servants. और पहला तीसरा अध्याय उसकी 6ठी और 7वीं आयत में कहता है कि
ये कि कौन है अपोलोस, पौल कौन है और पौलुस क्या है? I planted the seed, Apollos watered it, but God gave the growth. मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। Neither he plants anything nor he waters, only God who gives growth. इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है, ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर जो बढ़ाने वाला है। Then he goes on to explain how the church should look upon Paul and Apollos, how they should, what perspective they should have. और फिर वो कलीसिया को बताता है कि कलीसिया को इन दोनों को, पौलुस को और अपोलोस को किस नजरिए से देखना चाहिए। In 1 Corinthians 4th chapter verse 1 and 2 he writes, पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय पहली 2 आयतों में लिखता है, men ought to regard us as servants of Christ and as those entrusted with the secret things of God. मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझें। Now it requires that those who have been given a trust must prove faithful. और यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि विश्वास योग्य निकले। So Paul is saying, see, don't compare us. I'm only a servant, he's a servant. We have been entrusted with certain secret things of God. और वो कह रहा है कि आप हमारी तुलना ना करो, हम दोनों परमेश्वर के सेवक हैं और हम भंडारी हैं, परमेश्वर ने हमें अपनी अपनी सेवकाई दी है। And we are called to be faithful to whatever trust God has given us. और जो भी भंडारीपन हमें दिया है उसके लिए परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम विश्वास योग्य निकले। It goes on to explain verse 7, who makes you different from anyone else? और वो 7वें आयत में कहता है, क्योंकि तुझ में और दूसरे में कौन भेद करता है? What do you have which you did not receive? और तेरे पास क्या है जो तूने दूसरे से नहीं पाया? No, receive from God. What do you have which you did not receive? From God did not receive. हाँ, इट्स रिटन है। और तो यहाँ लिखा है, जो तेरे पास क्या है जो तूने नहीं पाया, मतलब जो परमेश्वर से नहीं पाया। And therefore, if you received it, why do you boast as you did not receive it? और जब तूने पाया है तो ऐसा घमंड क्यों करता है कि मानो नहीं पाया? So Paul and Apollos both received revelation from God. So the credit goes to the one who gives the revelation, not the one who receives revelation. और पौलुस दोनों को परमेश्वर से दर्शन मिला था, इसलिए जो श्रेय जाता है वो दर्शन देने वाले को जाता है। So basically it means every good thing we have today, every good and perfect is a gift of God. We didn't earn it, they received it. So remember, who we are today is by the grace of God. तो जो भी भली चीज हमें मिली है वो हमने कमाई नहीं है, परमेश्वर से पाई, हमने सिर्फ पाया है। और हमें इस बात को याद करना है कि जो कुछ भी हम हैं ये परमेश्वर के अनुग्रह के कारण से हैं। We don't boast about the gifts, we boast of the giver. हम उस दान का घमंड नहीं करते, पर जो देने वाला है दान को उस पे घमंड करते हैं। Definitely not boast about the one who receives the gift. और जो दान पाता है उसको बिल्कुल घमंड ही नहीं करना चाहिए। Therefore, see, the pride and humility is a matter of the heart. You can be very polite, but in the heart, you may be proud. और नम्रता और जो दीनता है ये हृदय की बात है। आप दिखा सकते हैं बाहर से कि मैं बहुत नम्र हूं, पर हो सकता है अंदर हृदय में आप घमंडी हो। So we covered 3 points today. Next week I'll cover a few more points. आज हमने 3 बातों का देखा, कुछ और बातें हैं जिसको हम अगले हफ्ते देखेंगे। This particular quality of humility is very, very important in Christian life, because with that we be confident to receive more and more grace from God and to establish our relation to the people in a beautiful way, and He'll not allow us to get difficulties with people, and be easy to forgive people, easy to put up with people. It's a wonderful quality to have humility. और ये जो नम्रता है विश्वासी जीवन के लिए बहुत जरूरी है कि हम किस तरह से लोगों को क्षमा करें, लोगों के साथ किस तरह से मिलजुल के रहें, और ये बहुत अच्छा दान है जो एक विश्वासी के जीवन में होना चाहिए। Most of all, we'll have confidence to receive more and more grace from God. और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हमारे अंदर ये हियाव होना चाहिए कि परमेश्वर से और ज्यादा नम्रता और अनुग्रह हम पाते जाएं। Next Wednesday I'll again speak on this. God will. और परमेश्वर की दया रही और परमेश्वर की इच्छा रही तो अगले हफ्ते फिर इस पे हम और आगे मनन करें।